آج کا پیغام باغ گیتسمنی میں دعا. آج کا ٹاپک ہے باغ گیتسمنی میں دعا. اس کے لیے جو حوالہ ہم تلاوت کریں گے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ ہے. The Gospel of Luke 22واں باب chapter 22 verses 41 and 42. دو آیات مقدسہ ہیں 41 اور 42. 22واں باب ہے 22 کی 41 اور 42. جی خداوند کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. کلام پاک کی تلاوت، اس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. گیتسمنی کا مطلب ہے کولو میں سے گزارنا یا پیسنا. اولیو پریس. یسوع مسیح کی منسٹری میں کوہ زیتون کا بہت تذکرہ ہے. ماؤنٹ اولیو، کوہ زیتون. دنیا ادیان کے فرق نظریات ہے یسوع مسیح کے تعلق سے. پہلی بات، وہ یسوع کی مصلوبیت کو نہیں مانتے. یہ بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. پھر یسوع کی تدفین اور ریزوریکشن کو ہی نہیں مانتے. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. پھر یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. اور آپ کو پتا کہاں سے اٹھائے گئے؟ وہ کوہ زیتون سے. تو یوں کہہ لیں کہ یسوع مسیح کی منسٹری میں ماؤنٹ اولیو جو ہے، کوہ زیتون جو ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کا نام تھا باغ گیتسمنی. یسوع مسیح مصلوبیت سے پہلے بھی وہاں پر جاتے ہیں. آپ اس کا اندازہ لگائیں. ڈیورنگ منسٹری، ڈیورنگ پریچنگ، ڈیلیورنس منسٹری، پریچنگ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے. دعا کے لیے کوہ زیتون پر وہ وقت گزارتے تھے. اور یہ بھی بڑی بات ہے، یہ پرائیویٹ لینڈ تھی، اس کے بارے میں یاد رکھیں. یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی تھی. یہ کوئی سرکاری یا کوئی جنگل نہیں تھا کہ جڑا مرضی چلا جائے. میں غور کر رہا تھا کہ اس شخص نے جس کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی، اس نے یسوع کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں آ کر یا میرے گارڈن میں آ کر یا میری پراپرٹی پہ آ کر آپ دعا کر سکتے ہیں. تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے غیر مسیحی بھائی ہمیں بڑی بڑی گراؤنڈز دے دیتے ہیں، اپنی جگہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں پر بڑی عبادت کریں. کئی بار اپنے رکاوٹاں پا رہے ہوندے نے تے دوجے اجازت دے دیندے نے. تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہماری مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے خدمت کے میدان میں. تو یسوع مسیح کی منسٹری میں کوہ زیتون بہت خاص حیثیت رکھتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح عشاء یعنی لاسٹ سپر کے بعد فوراً وہ اپنے شاگردوں کو لے کر کوہ زیتون کی طرف چل پڑتے ہیں. اور پھر وہ اس جگہ پر جا کر دعا میں ٹھہرتے ہیں اور شاگردوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں دعا کرو تاکہ آزمائش میں
ना पढ़ो। अब यीशु की भी आजमाइश थी और शागिर्दों की भी आजमाइश थी। वो आगे चलकर हम सीखेंगे कि वो आजमाइश क्या थी। यीशु की तो आजमाइश ये थी ना कि उसने अपनी जान देनी है, शागिर्दों की भी आजमाइश थी। ठीक है, आप जानते हैं कि पतरस को जब पूछा गया तू भी इसके साथ, ये आजमाइश थी उसकी, और वो वहां पर नाकाम नजर हमें आया। तो इस पर मैंने सिखाया था दुआ हमें आजमाइशों में फतह बख्श देती है। जो दुआ करते हैं वो आजमाइशों में से गुजर जाते हैं, और जो दुआ नहीं करते वो आजमाइशों में गिर जाते हैं। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, आजमाइशों में गिरना नहीं है। जो दुआ करते हैं वो आजमाइशों पर गालिब आते हैं। और जब आप आजमाइश में होते हैं तो इब्लीस सबसे ज्यादा किस चीज को टारगेट करता है? यू नो अबाउट इट, आपकी दुआ है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। मेरे हालात ठीक होंगे मैं दुआ शुरू करूंगा। भाई ये क्यों नहीं कहते मैं दुआ करता हूं ताकि हालात ठीक हो जाएं? आप इस जगह पर क्यों नहीं आते? लोग चर्च ईमानदार इस जगह पर क्यों नहीं आते कि दुआ से हालात ठीक होते हैं? तो कई कहणगे दुआ ही ना करया कर, काम भी करया कर। लो लोकी दुआ नूं काम ही नहीं समझते। इब्लीस सबसे ज्यादा टारगेट आपकी दुआ को करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसकी दुआ ठीक होगी, इसका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ गया, तो फिर मम्मी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्लीस आपको नुकसान कब देता है? जब आप खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वो आपकी दुआ को फिर टारगेट करता है। और जब आपकी दुआ डिस्टर्ब हो गई तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही बात खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं, और वो बार बार सो जाते हैं, उन्हें नींद आ रही है। तो ये हमेशा याद रखें कि इब्लीस इस कोशिश में लगा रहता है कि आप जो है दुआ ना करें। जरा देखें लुका 22:39 देखें। ये नहीं कि यीशु मसीह मुश्किल वक्त में दुआ कर रहा है, बल्कि देखिए जरा। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के अब मौफिक, यहां पर ये लिखा है दस्तूर के मौफिक, इस पर मैंने पहले भी बताया था, दस्तूर के मुताबिक इससे मुराद रूटीन यानी ये उसका मामूल था। इस पर मैंने बताया था कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में गया, यानी इबादत खाना में भी दस्तूर था। ये नहीं कि कभी कभी खुदावंद इबादत खाना में जाते थे, या सीजे में कभी कभी गिरजे आने हैं। ठीक है, हम कहते चलो कभी तो आई था ना, महीने च एक बारी आई था, इन्ना ही काफी है, इन्ना के मैं कर सकना। नो, हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है वो इबादत खाना में भी दस्तूर के मुआफिक जाते थे, और यहां पर बागे गेत्सेमनी में भी वो दस्तूर के मुआफिक आते थे। दस्तूर था, रूटीन थी। पढ़े। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। बागे गेत्सेमनी हमें क्या सिखाता है? दुआ सिखाता है। बागे गेत्सेमनी का पैगाम क्या है? दुआ का पैगाम है। दुआ करो ताकि आजमाइश में, यीशु की भी आजमाइश थी, शागिर्दों को भी आजमाइश थी। यीशु की आजमाइश क्या थी? इब्लीस उसे आजमा रहा था कि मैंने तेरी जान बागे गेत्सेमनी में लेनी है। प्रेशर था। इब्लीस उसके सामने मौत का प्याला और दुनिया के गुनाहों का प्याला लेकर आ रहा था, और लेकिन उसकी जो कंडीशन थी जान कनी, यानी
जान निकल रही थी, क्रिबल मर्ग जैसे होता है बंदा, इस कदर वीक, कमजोर कर दिया था, इतना प्रेशर था खुदावंद के ऊपर। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका जो पसीना खून बन गया। पहले तो शायद दुनिया को इसकी समझ नहीं आती थी, लोग कहते होंगे कोई है केड़ा फलसफा मसीह दस रहे ने। हुण जो कि मेडिकल साइंस आ गई है, उन्होंने पता ब्लड प्रेशर होवे तो कुछ भी हो जाता है, यानी ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस भी बढ़ा हुआ है, और बुरे तरीके से इब्लीस उसे टारगेट कर रहा है, उसकी बॉडी को उसे वीक कर रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। लिहाजा नौबत क्या आई कि उसका पसीना जो है, मसाम जो है, इतने खुल गए। ये मेडिकल कंडीशन थी वहां पर, ये आजमाइश थी खुदावंद की। अब यीशु ने क्रूशल टाइम में, मुश्किल और कठिन वक्त में दुआ का फैसला किया, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता है। बाप की मर्जी को, अगर आप भी बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो फिर दुआ में ठहरे, जैसे बेटा दुआ में ठहरा है। बेटे की आजमाइश क्या थी? इब्लीस बेटे को भागे गेत्सेमनी में, लेकिन बेटा कहता है नो। नबियों ने इस पर बात की थी कि बेटा ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अच्छा, जो क्रिटिक्स हैं, जो नकाद हैं, जो बाइबल को जो तनकीद की ऐनकें लगाकर देखते हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह तो यहां पर ये कह रहा है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे, हाँ जी पढ़े जरा, वो बड़ी करते हैं ना, उंगलियां उठाते हैं, आपको पता है लोग क्या कहते हैं जी। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ये प्याला हटा दिया गया था जी बाप, हाँ जी, कौन सा प्याला? मरने के लिए तो वो दुनिया में आया था। अच्छा, वो कोर्ट क्या करते हैं? वो कहते हैं ये हटा दिया गया था, ते अग्यों दलील की दिंदे ने, कहते यहूदा इस्करियोती जड़ा है ना, ओदी शक्ल यीशु वर्गी हो गई सी है। अच्छा, कहते ने ओदी शक्ल बदल गई सी, यानी यीशु दी शक्ल, यीशु दी सूरत यहूदा नूं मिल गई सी। ते उन्हां नाल मेरा सवाल है, सूरत मिल गई ते सीरत क्यों नहीं बदली ओदी? है जे खुदा सूरत दे सकता है तो यहूदा दी सीरत भी बदल सकता सी, लेकिन ओदी सीरत नहीं बदली, तुहानूं पता एंड तक। मेरी बात समझ रहे? और हवाला क्या देते हैं, आओ देखिए, इब्रानियों 5:7, जो इस पर तनकीद करते हैं ना, इस बात पर यीशु की जो मसलूबियत के इनकारी हैं, वो ये हवाला देते हैं। आओ देखिए, इब्रानियों 5:7, मसलूबियत के इनकारियों का हवाला, जो गलत इंटरप्रिटेशन करके मसीहियों को उनके ईमान से हिलाने की कोशिश करते हैं जी। इब्रानियों 5:7, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। कहते ने इथों लेंदे ने, वो भोले हैं, वो नादान है। वो क्या है? वो नादान है। आओ देखें, यीशु की मौत की गुफ्तगू के लिए तो अंबिया की सबसे बड़ी शख्सियत भी मुलाकात करती हैं आकर। लूका 9वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। यीशु की मौत कोई हादसा नहीं है कि ऐसे पकड़ के उन्होंने मसलूब कर दिया, नो। आइए देखें नबी इसके बारे में क्या कहते हैं। लूका 9वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पढ़े जी। 9वां बाब 28 से पढ़े। फिर इन बातों के
कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा हाँ, कौन आए हैं जी? यानी मूसा मूसा और एलिया और एलिया उससे बातें कर रहे थे। उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र, हाँ, गुफ्तगू क्या हो रही है? उसके यानी इंतकाल का जिक्र, उसकी जो मौत, स्लीपी मौत थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो दुनिया और जो नकाद बाइबल को तनकीद की ऐनक लगाकर पढ़ते हैं, वो नोट कर लें कि यीशु मसीह की मौत की गुफ्तगू मूसा और एलिया भी आकर कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु की मौत कोई हादसा नहीं है। यीशु मसीह की मौत नबियों की पेशिन गोइयां और नबूवतों की तकमील है। इसलिए मुकद्दस पालूस ने क्या कहा? यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। यीशु जिस प्याले की बात कर रहा है वो बागे गतसमनी वाली बात कर रहा है, क्योंकि इब्लीस उसे वहां मारने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ऐ बाप, क्योंकि नबियों ने नबूवतें की हैं, नबी इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, वो डाकुओं के दरमियान मसलूब होगा, उसकी कब्र गुनहगारों के दरमियान होगी। नबी ये पेशन गोइयां या नबूवतें करते रहे। सो लिहाजा यीशु वहां पर बाप को ये कह रहे हैं कि ये प्याला जो मौत का प्याला है, ये मैं पीना तो चाहता हूं, लेकिन इस जगह पर नहीं जिसकी बाबत नबियों ने कहा है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मैं सलीब पर जान दूंगा। और बागी गेतसमनी की दुआ का नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? उसे फरिश्ता दिखाई दिया। हालेलुया। दुआ के नतीजे में फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं। फरिश्ता उसे तकवीयत देता रहा, फिर खुदा के फरिश्ते, खुदा का पाखरू हमारी मदद करता है ताकि खुदा का मिशन हम पूरा करें, और वो हमें मिशन जो फील्ड होता है, मकाम होता है, वहां तक ले जाता है। इसी तरह वो अपने बेटे को भी कोई कलवरी के मकाम पर ले गया ताकि बेटा बाप के मिशन को पूरा करे। इसलिए बागे गेतसमनी की दुआ जो है वो ये दुआ नहीं थी कि बेटा मौत से बच जाए। बेटा तो कहता है कि मुझे जान देने और फिर उसे ले लेने का इख्तियार है। हरमून के पहाड़ पर एलिया और मूसा उसकी मौत की बाबत गुफ्तगू करते हैं। लूका 22:44 में लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा। पढ़िए जरा, बागे गेतसमनी की दुआ आज का टॉपिक है। 22:44 पढ़िए। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उसे तकवीयत देता था। 44वीं। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। वाह, ये थी कंडीशन मेरे मसीहा के। बागे गेतसमनी की दुआ। 2 जंगें लड़ी हैं खुदावंद ने कफारे के लिए, बागे गेतसमनी में और दूसरी, ये दोनों बड़ी टफ थी। इसके बाद
پھر وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر عدالتیں ہیں، پھر کوڑے ہیں، پھر کیل ہے، پھر تاج ہے، پھر نیزہ ہے، بہت کچھ ہے. لیکن ابھی باغ گیتسمنی ہے. یہ بڑا پینفل تھا خدا ان کی منسٹری میں ٹائم، لیکن دعا نہیں چھڑی. دعا، یہ بیٹے نے ہمیں سکھایا، دعا نہیں چھوڑی اس نے. اور بھی دل سوزی کے ساتھ، پریشر کے اندر دعا نہ چھوڑیں، بلکہ دعا کرتے رہیں. زندگی کی مشکلات میں دعا نہ چھوڑیں، دعا کرتے رہیں. زندگی کے ٹف ٹائم میں چرچ جانا نہ چھوڑے، دعا کرتے رہیں. زیتون کے پہاڑ پر یہ اس کا دستور تھا کہ وہ دعا میں ٹھہرتا ہے. بیٹا ہمیں سکھاتا ہے وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دعا میں ٹھہرا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہودا کی جو پلاننگ تھا وہ بھی چل رہی تھی. جی یہودا، آج کل تانوں بڑے گیت ملنے نے، قدسہ مریم دا ہاڑا، اس طرح کے. بلکہ آج کل تو انہوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے نوحہ پڑھ رہے ہیں. انجیل میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہم یسوع کی موت کا ماتم کریں. ہم یسوع کی موت کا ماتم نہیں کرتے. ہاں ہم کر سکتے تھے اگر یسوع قبر میں ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس لیے صلیب کی ایک رخ کو نہ دیکھیں. صلیب کا ایک رخ یہ ہے یسوع مصلوب ہوا، صلیب کا دوسرا رخ ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اور اسی چیز نے مسیحیت کو دنیا میں ممتاز کیا، ہلیلویا، عظیم تر بنا دیا ہے. یہ پیغام کہ یسوع مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ہمارے پیغام کو جلا بخشی ہے. اور دنیا میں کہیں ایسا پیغام نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، انجیل کا پیغام. یہودا کی پلاننگ چل رہی تھی. یہودا نے یسوع کو خنجر دکھا کر اریسٹ نہیں کروایا، نہ ہی تلوار دکھا کر. یہودا نے منہ چوم کے پھڑوایا ہے. تے جڑے تاڑے منہ چومن والے نہ تو احتیاط بھی کرے ہو، نال پھردے ہوندے نے کئی دفعہ، لیکن وچوں ہی پھر. اس پر میں نے بتایا تھا کہ یہودا نے یسوع کا سودا نہیں کیا، اس نے اپنا سودا کیا تھا. تھوڑا سا سیکھ لیں اس حوالے سے بھی، آپ کو برکت ملے گی اس پوائنٹ سے بھی. لوکا 22ویں باب کی 47ویں آیت سے سوٹی پڑھیے ذرا 48ویں آیت تک. لوکا 22واں باب 47 آیت سے 48 تک پڑھ دیجیے گا، یعنی 47 اور 48 دونوں آیات ہیں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بڑی بھیڑ اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے تھا. وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے. کیا کرے؟ اس کا بوسہ لے. طریقہ عبادت پر غور کریں. کیا کرے؟ اس کا بوسہ لے. یسوع نے اس سے کہا اے یہودا کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے. واہ، حیرانی ہوئی نا بھی تو میرا ساتھی سی، جے تو آیا تو تو ہور طریقے نہ مینوں پھڑوا، منہ چوم کے کیوں پھڑوانے؟ دکھاوے کی محبت. انہیں کہا جے تو انہوں پڑھوانا ہی ہے تو پھر کھلم کھلی کار مخالفت میں انہوں پڑھوا. تو میرے خلاف پروپوگنڈے کر کے کیوں؟ یہ کیوں مکاری اور فریب کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا میں تمہارے درمیان پریچنگ کرتا، مجھے وہاں کیوں نہیں تم نے پکڑا؟ اب کیوں آئے ہو؟ یہ بات جب میرے سامنے تھی تو مجھے داؤد کا بھی واقعہ آ گیا.
समी नामी शख्स दाऊद को पत्थर मार रहा था। मैंने संडे के मैसेज में प्रीच किया था, हलीमी टॉपिक था। दाऊद को समी नामी शख्स जो साउल का रिश्तेदार था, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, दाऊद ਤੇ ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ और दाऊद ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। और अबीशे जो दाऊद का बड़ा वफादार साथी था, उसने कहा मुझे हुक्म कर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दाऊद ने कहा नहीं, जो तो मेरा पुत्र मेरे खिलाफ है तो मैंने यदि मुखालफत कुछ नहीं कहती। आप याद रखें, गैरों के जख्म इतने पेनफुल नहीं होते जो अपनों के होते हैं। तो यही बात खुदा यीशु भी उसे कह रहा है कि तू मेरा मुंह चूमने के बाद मुझे अरेस्ट करवा रहा है। यीशु ने उससे कहा, ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? बोसा लेकर तूने जो करना है खुल कर कर। तू ये फ्रेम क्यों कर रहा है? ये जो दिखावा प्रिटेंड कर रहा है कि शायद तू मुझे प्यार करता है, तू गलत है, तू गलत कर रहा है। तूने जो भी करना है खुल कर कर मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बाप के मिशन को पूरा करने आया हूं। तू क्यों ऐसा फ्रेम मुझे दिखा रहा है, ऐसा धोखा मेरे साथ कर रहा है? और वहां पर एक और था, उन्हें की था, वो भी जज्बाती सी थोड़ा, उस प्याले च एदा इनकार भी शामिल से। हाँ जी, इस पर मैंने बताया था कि तबीयत अजीब ही सी पीटर दी। गो वो बड़ी अजीम मुकद्दस हस्तियां, लेकिन थोड़ा मिजाज फर्क ही था कि जहां पर शांत रहने की बात होती थी वहां वायलेंट हो जाता था, जहां पर चुप रहने की बात होती थी वहां बोल पड़ता था, जहां पर इकरार करने की जरूरत थी कि मैं दे नाल उथे मुकर जांदा सी। तो अब वो क्या करता है वो देखिए जरा जी। बागे गेत्समनी का वाक्य सीख रहे हैं हम। लूका 22:49 पढ़िए जी। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो कहा ए खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? हाँ, ये पैगाम मसीहत को दुनिया में मुनफरद करता है कि यीशु दुनिया में तलवार चलाने नहीं आया। यीशु ने कहा था कि मेरी बादशाही जमीन की, अगर मेरी बादशाही इस जमीन की होती तो मेरे शागिर्द भी तुम्हारे साथ दंगा फसाद लड़ाइयां करते, तलवारें चलाते। क्या कहा खुदा ने, सुने जी। और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। अब रूहानी काम जिस्मानी तरीके से किया जा रहा है। कैसे? स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, रूहानी जंग जो है, वो जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ी जाती, वो रूहानी तौर पर लड़ी जाती है। और जब आप चीजों को, रूहानी जंगों को स्पिरिचुअल रैलम के अंदर रूहानी आलम में तय कर लेते हैं, रूहानी आलम में चीजों को आप ठीक कर लेते हैं, जिस्मानी आलम में चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आप कई दफा चीजों को सिर्फ जिस्मानी आलम में ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप नाकाम हो जाते हैं। हुआ क्या है फिर, सुने आगे। फिर यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, है इतने पर कफायत करो, और उसका कान को छूकर उसको अच्छा किया। हालेलुया। मसीह मसलूब नु फड़न भी आगे ने, कमजोरी दी हालत च भी है, फिर भी मौजे करन दे। आओ खुदा दे जलाली जोरदार तालियां बजाओ। उथे भी मौजे करन दे। ते दसो मौत तो डर सकता है? उन्हें कहा मैं चाहवा तो 12 तुमन फरिश्ते आ सकते हैं। किन्ने? 12 तुमन। ते फरिश्ता तो एक ही गड़गलियां पा दिंदा है, उल्ट पुलट हो जाता। फरिश्ता एक ही आया होए तो जनाब तबाही मच जाती है। उन्हें कहा 12 तुमन 70-75 हज़ार फरिश्तियां का जिक्र किया कि आ जान तो दुनिया को हिला के रख देंगे। तो यीशु ने पीटर को ये प्रिंसिपल सिखाया है, रूहानी लड़ाई रूहानी हथियारों से लड़ी जाती है, रूहानी लड़ाई जिस्मानी हथियारों से नहीं लड़ी जाती। लिहाजा उसने उसका कान पकड़कर मौजजा किया और ठीक उसे जगह फिट कर देता, जरा भी अगे पीछे नहीं किया, क्योंकि कान बनाने वाला जो आप सी। हालेलुया। और जो यीशु ने अन्ने नूं शिफा दी तो लिखा जाके धो ला। इत्थे मैं दसिया जे ना धोंदा तो सारी जिंदगी मरन तक लगी रहनी सी मिट्टी, क्योंकि यीशु ने लाई हुई सी। वो खाली का ना, बिल्कुल ठीक जगह पर कान लगा, क्योंकि वो क्रिएटर था।
वो क्रिएटर है। अब शागिर्दों की हालत बागे गत्से में 45वीं आयत पढ़िए स्वीटी जरा। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया जी, तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो? तुम सोते क्यों हो? क्यों हो? उठकर दुआ दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में ना पड़ो। रूहानी जंगों में आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। नोट कर ले, ये फाइनल और आखिरी पॉइंट है। रूहानी जंगों में बेदार रहना क्यों जरूरी है? इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पैदाइश 15वां बाब है, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। अगर आप रूहानी जाम में सो गए तो फिर नतीजा यह भी निकल सकता है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पैदाइश 15वां बाब 12वीं आयत जी। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। वक्त क्या था कि कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी जाए और आसमान से आग आए, और मुकद्दस अब्राम ने क्या किया है? कुर्बानी रखकर खुद सो गया है। तो फिर इसलिए ये पॉइंट मैंने नोट किया यहां पर, रूहानी जंग में आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। नतीजा क्या निकला? 11वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर हुआ क्या है? तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंगाता रहा क्योंकि आग आने में देर होगी। अब्राहम तो सो गया था। रूहानी जंग के अंदर यह प्रिंसिपल है, आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है, वरना शिकारी परिंदे क्या करेंगे? शिकारी परिंदे आपकी कुर्बानियों पर हमला कर देंगे। तारीकी की कुव्वतें आप पर हमला कर देंगी अगर आप रूहानी तौर पर सुस्त हो गए, अगर आपको नींद आ गई। और यही काम यहां पर शागिर्द भी कर रहे हैं। क्या पढ़ा है आपने शागिर्दों के ताल्लुक से? कि वो 45वीं आयत में जब दुआ से उठकर, हाँ जी, दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया। ये नींद जो है, आपकी रूहानी सुस्ती जो है, आपको रूहानी तौर पर पीछे ले जाएगी, तारीकी में ले जाएगी। गहरी तारीकी छा गई और कुर्बानी बसम करने वाली आग में देर हो गई, क्योंकि अब्राहम सो गया था। अगर आप रूहानी तौर पर सो गए, अगर आप बेदार ना हुए, तो फिर शिकारी परिंदे आपकी कुर्बानियां को जाया कर देंगे, आपकी कुर्बानियां बेमकसद हो जाएंगी। यीशु मसीह शागिर्दों को यही सिखा रहे कि ये वो वक्त है कि तुम दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो लिखा है, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म। इस पर मैंने बताया था कि आप अपने जिस्म के ताबे ना हो, बल्कि जिस्म को खुदा के ताबे कर दें। मैंने दुश्मन बताए थे आपके, कितने हैं? कितने बताए थे मैंने? थैंक यू। किसने बताया? 3 भाई निक्सन ने। आपका जिस्म, इब्लीस और दुनिया। थैंक यू ब्रदर। आपका जिस्म आपको, आपकी रूह को प्लूट कर देता है, प्लूटेड हो जाती है आपकी स्पिरिट जब आप खुदा की नाफरमानी करते हैं। आपका जिस्म हमेशा यह कहता है कि रूह के अपोजिट चलो, मुखालिफ चलो। तो यहां पर खुदा यीशु शागिर्दों को बेदारी की टीचिंग दे रहे हैं।
आज के चर्च को भी बेदार होने की ज़रूरत है, ताकि ये ना हो कि जैसे अब्राहम की कुर्बानी को शिकारी परिंदे नोचने लगे और वो उनको हंकाता रहा। तो फिर तुसी भी इधर मुसीबत आ गई, इधरों को प्रॉब्लम आ गई, इधरों न्याणिया ने तंग किया, इधरों हमसाए तंग कर रहे, इधरों किसी पासों स्यापा, इधरों किधरों प्रॉब्लम आ गई, फिर आप भी यही करते रहेंगे। लेकिन अगर बेदार रहे तो जैसे बेटा कामयाब हुआ आप भी कामयाब होंगे। दो बाग हैं, बागे अदन और बागे, पहला आदम बागे अदन में नाकाम हो गया है, दूसरा आदम बागे गेत्सेमनी में कामयाब हुआ है, क्योंकि दूसरा आदम दुआ में ठहरा रहा। और गेत्सेमनी का पैगाम है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आओ झुके और खुदाम के हुजूर कहें, खुदामंद मुझे रूहानी तौर पर बेदार कर, ताकि अब्राहम की तरह मैं भी गहरी तारीकी में न फंस जाऊं और शिकारी परिंदे मुझे और मेरे ख़ानदान को दुख देते रहें। परेशानियों का सामना, दुखों का सामना। आंखें बंद कर लीजिए, आओ कुछ वक्त के लिए दुआ मांगे।